Hello students, today we will discuss the English literature portion of ICSE class 9 and 10th. The first poem, Heart of the Tree, mentioned in your book Tracer Trove. So let's start. The poem Heart of the Tree is written by Henry Culler-Burner. This poem was written in 1912. In this poem, the poet has highlighted the need of planting tree. The poet believes that a tree proves to be a large hearted as it benefits all and sundry. It leaves a rich legacy for the coming generation also. The poet starts the poem with a question and then proceed it with his own replies. As you can see, what does he plant? Who plants a tree? Here, the poet asks a question himself that what a person has planted, who has planted a tree, what does he plant? Who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free. Here, the poet asks a question. What does he plant? Who plant a tree? तो जिसने भी एक प्लांट को लगाया है, उसकी प्लांटिंग की है, तो उसने साथ में क्या लगाया है? He plants a friend of sun and sky. Here, the poet says, the person who plants a tree, he also plants a friend of sun and sky. How? A plant is very beneficial because it purifies the air and reduces the air temperature. तो जिसने भी प्लांट को लगाया है, उसने एक ऐसा फ्रेंड लगाया है सन और स्काई का, जो कि क्या करता है कि इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को फ्रेंडली बनाता है, टेम्परेचर को घटाता है और जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है स्मोक और डस्ट से. He plants a flag of breezes free. It means it ensures free, gentle breeze. उससे क्या होता है? इसका मतलब ये निकलता है कि प्लांट जो है, एक जो ट्री है, वो एयर को और उसका जो सर्कुलेशन है उसको फ्री बनाता है. जैसे एक फ्लैग जो है वो खुले में लहराता है, वैसे ही ट्री जो है वो एयर का जो सर्कुलेशन है उसको फ्री फ्लो करता है. So the shaft of beauty towering high. What is the meaning of shaft? Here, the meaning of shaft is a narrowness. Towering means rise. So he plants a home to heaven nigh. Nigh का मतलब होता है near और close. So it means a tree
makes a place like a heaven, and it look like a home he has constructed near a heaven, because it gives a natural beauty to at that particular place. In other ways, the poet says that the place where green trees is nothing is short of heaven. The poet makes a resemblance between greenery and heaven here for song and mother croon of bird. Now, what is the meaning of croon? So, croon means humming, speaking very sweetly. The poet says, when the trees grow up, the birds make their nest on its stems, and then they lay their eggs there. After hatching the eggs, the babies of the world make pruning with their mother, which looks like very sweet to hear. In other words, the poet says the trees give shelter to the birds, and in that shelter, the birds create crooning in a silent and peaceful atmosphere which delights us. तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स को प्लेस प्रोवाइड कराते हैं कि वो अपना जो घर है वहाँ पर बनाएं, और उस घर में जब उन बर्ड्स के बेबीज़ ने जो है वो हो जाते हैं, तो उनके बेबीज़ की और उनके मदर बर्ड की जो क्रूनिंग है शाम के समय शांत माहौल में सुनते हुए हमें बहुत खुशी प्रोवाइड करती है. इन होस्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड, होस्ट का मतलब होता है साइलेंट, शांतमयी, और ट्विलाइट का मतलब होता है सूरज के डूबने के बाद का जो समय होता है रात के पड़ने से पहले, तो उसको हम ट्विलाइट बोलते हैं. तो शाम इवनिंग के बाद ये जो बर्ड क्रूनिंग है वो हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है. और ये द ट्रैवल ऑफ हेवंस हारमोनी, ट्रैवल का मतलब होता है ऊंची आवाज़, शोरगुल, और हारमोनी जो है वो स्वीटनेस के लिए यूज़ किया गया है. तो ये जो स्वीटनेस है, ऐसा देखकर बर्ड्स को, ट्रीज़ को, नेचुरल इन्वायरमेंट देखकर जो स्वीटनेस हमको मिलती है वो हमें स्वर्ग का अनुभव कराती है. सो ऑल दीज थिंग्स ही प्लांटेड, ये सभी चीज़ें उस पर्सन ने लगाई हैं जिसने कि एक ट्री को लगाया है. Now in the second stanza, again the poet starts the stanza with the same question which he asks
in the first stanza. So what does he plant who plant a tree? तो क्या उस जिसने भी एक ट्री को लगाया उसने क्या लगाया है? He plants cool shade and tender rain. Then the poet makes a reply. The person who has plants a tree, he also plants cool shade and tender. Tender means pleasant, suhavni. It means the person who plants a tree, he also makes a arrangement of cool shade. As we know, in the summer, the hotness, and in that situation, cool shade gives pleasure to us. So here the poet says the person has plants cool shade and tender rain in all the seasons. मतलब कि जो पर्सन जिसने भी ट्री को लगाया उसने गर्मियों में हमारे लिए छाया का, ठंडी छाया का और सभी सीजन्स में रेन का अरेंजमेंट किया है. एंड सीड एंड बर्ड ऑफ द डेज टू बी. डेज टू बी का मतलब है यहाँ पर फ्यूचर. एंड ईयर दैट फेड एंड फ्लश अगेन. द पोएट सेज a person who plants a tree, he also makes arrangement for another trees, the heritage of forests, because new trees create. It means a tree gives us seeds which sprout and birds which bloom in time to come. मतलब कि जो ट्रीज़ हैं वो हमें सीड देते हैं और वो जो सीड हैं टाइम आने पर उनमें से आगे और भी ट्रीज़ जो हैं वो लगाए जा सकते हैं. He plants a glory of plain. He plants the forest heritage, the harvest of a coming age. तो यहाँ पे हेरिटेज का मतलब है ट्रेडिशंस, लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशंस, और रिवॉर्ड मीन्स हार्वेस्ट मीन रिवॉर्ड. The poet describes tree as a forest heritage and the harvest of coming age because it can serve us as a living legacy for the next generation. इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब कि जो ट्रीज़ हैं वो उनको फॉरेस्ट की हेरिटेज बोला गया है. जो फॉरेस्ट के जो ट्रेडिशंस हैं उनको ट्रीज़ आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी सर्व करेंगे. The joy that unborn eyes shall see, these things he plant who plants a tree. What does it mean? It means the trees provide many benefits in the times to come. Benefits to our upcoming generation.
like shading, fruits, flowers, moderate temperature, pleasant environment. All these things the trees will provide to our next generation. तो इसका क्या मतलब निकला? तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारी आने वाली जो अगली जनरेशन है उसको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो उनको जीवित रहने के लिए चाहिए, जैसे कि ताज़ी और ठंडी हवा, रेन, फ्रूट्स, फ्लावर्स और एक प्लीजेंट इन्वायरमेंट जिसमें कि वो अपने आप को सरवाइव कर सकें। तो ये सभी चीज़ें वो पर्सन प्लांट करता है जो एक ट्री को लगाता है। सो इन दिस वे द पोएट creates a link between us and our children along with the trees. Now the next stanza, what does he plant who plant a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty and forecast thought of civic good. Civic good means the act for humanity. The poet says that there are many other benefits of planting a tree. Good values like love, loyalty are planted when one plants a tree. Planting a tree is also a civic good. अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि पोएट कहता है कि एक प्लांट को लगाना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लांट जो है वो हमें लव एंड लॉयल्टी जैसे जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं वो भी सिखाते हैं। तो इसका मतलब कि जिसने अभी एक प्लांट को लगाया है वो हमें लव और लॉयल्टी जैसी जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है उनको समझाता है, उन्हें क्लियर करता है। His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand hold all the growth of all our land. So the poet says here that tree benefits all the neighbors around us. The poet also emphasizes the fact that a country's growth and development depends on its wealth of trees. A nation's growth from sea to sea stirs in his heart who plants a tree. Stirs का मतलब होता है arousing of feeling, feelings का arouse होना। कहने का क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि जो भी पर्सन एक प्लांट को लगाता है वो किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन पे करता है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो। सी टू सी का मतलब है पूरे वर्ल्ड में। ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ता है और सबके मन में आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है।
It emphasizes the value of brotherhood throughout the year. In all part of the world. तो हर समय सबके मन में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है उसकी जो फीलिंग है ये उसको अराउज करता है. तो द पोएट सेज हियर द पर्सन हु प्लांट्स अ ट्री आल्सो प्लांट अ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो इस तरह से पोएट बोलता है कि जिसने भी एक ट्री को लगाया है उसने पूरे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना है उसको बढ़ाने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सो इन दिस वे द पोएट आल्सो एम्फेसाइजेस द यूनिवर्सल ब्रदरहुड. So students, today we will discuss the ICSE literature portion, class 9th and 10th, book name Treasure Trove, and the poem is here for you is The Heart of the Tree, the first one of your syllabus, written by Henry Kuehler Burner. So let's start. The heart of the tree means tree का दिल. The poem is highlighted by the poet for the need of planting tree. He believes that a tree proves to be a large-hearted as it benefits all and sundry. He says, what does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven nigh, for song and mother croon of bird, in host and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony, these things he plant who plants a tree. Here, the poet starts the poem with a question that what things a person plants who plants a tree? Then he makes the replies by his own. He says that a person who plants a tree also plant a friend of sun and sky. But how? As we know, trees helps to reduce the temperature of atmosphere and purify the air also. They also ensure gentle breeze. अब जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक जो ट्री होता है वो क्या करता है कि टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर में कम करता है और जो एयर है उसको प्योरीफाई करता है. इसके साथ ही एक जो ट्री है वो नेचर में जो एयर का सर्कुलेशन है उसको भी मेंटेन करता है. तो
इस तरीके से जो पोएट है वो ट्री को सन और स्काई का फ्रेंड बताता है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई, शाफ्ट का मतलब है नैरोनेस और टॉवरिंग हाई का मतलब होता है राइजिंग, ऊपर को उठना। Here the poet says, as a flag below in a free state, same a tree looks. The tree as becomes grow, it tries to touch the sky. कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एक जो ट्री वो बड़ा होता है तो उसका जो लॉग है वो ऊपर को उठना शुरू होता है और जो उसका टॉप का भाग होता है, जो उसकी स्टेम्स वगैरह के जो एरियाज होते हैं वो आसमान की ओर चलने शुरू हो जाते हैं, जैसे उन्होंने कि जाकर उसको टच करना है। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से मिलने के लिए बेताब होता है तो बिल्कुल वैसा ही वो ट्री जो है वो शो करता है। He plants a home to heaven and eye. Now, here the poet says, trees give shelter to birds. Here, birds denotes to a sparrow. A sparrow makes her nest on its stem at a very high point and lay egg there. तो क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि स्पैरो है वो अपना नेस्ट जो है वो पेड़ की बहुत सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वहाँ पर बनाती है और उसमें फिर वो क्या करती है, एग देती है और फिर उन एग में से क्या होता है उसके बेबीज जो हैं वो निकलते हैं। तो ये जो नेस्ट है ये एक हेवन की तरह है जो कि उस हेवन के पास में है जो ऊपर स्काई में है। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रून ऑफ द बर्ड। अब क्रून क्या होता है, तो क्रून होती है हमिंग, स्पीक वेरी स्वीट वॉइस इन अ हर्स्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ट। हर्स्ट का क्या मतलब होता है, हर्स्ट का मतलब होता है साइलेंट, चुप एकदम। और ट्विलाइट का क्या मतलब है, तो ट्विलाइट जो है वो शाम का समा होता है, इवनिंग का, जब जो सन सेट हो जाता है और रात निकलने वाली होती है उससे पहले का समा। द ट्रैबल ऑफ हेवंस हार्मनी। अब ट्रैबल का क्या मतलब है, तो ट्रैबल का मतलब है हाई टोन, ऊंची आवाज़, और हार्मनी का यहाँ पर मतलब है स्वीटनेस, मधुरता। Here the poet says, the mother sparrow sings hymns along with her babies on the silent evening, which look like very pleasant to us. In this way, it gives us a look of heaven to us. पोएट कहता है शाम के समय जब मदर स्पैरो अपने बेबीज के साथ में बातचीत करती है, उनके लिए गाना गाती है, हमिंग करती है, क्रूनिंग करती है, तो वो हमें देखने को और सुनने को बहुत अच्छा और मीठा लगता है। ये बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी, हमें ऐसे लगता है जैसे कि कोई स्वर्ग है, कोई स्वर्ग का सीन है। तो ये सभी नेचुरल सिनेरियो जो है वो हमें वो पर्सन प्रोवाइड कराता है जो कि एक प्लांट को, एक ट्री को लगाता है। क्योंकि अगर वो ट्री ना लगाता तो स्पैरो उस पर एग ना देती तो बेबीज़ ना होते, और अगर बेबीज़ ना होते तो वो मीठी मीठी जो आवाज़ है वो हमें शाम को सुनने को ना मिलती। तो ये सब चीज़ें वो पर्सन हमें प्रोवाइड कराता है जो कि एक ट्री को लगाता है। अब नाउ इन द सेकंड स्टैंजा,
What does he plant who plant a tree? He plant cool shade and tender rain. अब टेंडर का क्या मतलब? टेंडर का मतलब होता है प्लीजेंट, खुश करने वाली, सुख देने वाली। तो here the second stanza starts with the same question and then the poet makes the reply that a tree gives us cool shade in hot summer and pleasant rain in the all season. एक जो ट्री है वो हमको ठंडी छाया देता है झुलसती हुई गर्मी में। आप लोगों को पता ही है गर्मी में ठंडी छाया कितनी अच्छी लगती है, और हमें खुशी देने वाली रेन देता है सभी सीजन्स में। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर दैट फेड एंड फ्लश अगेन। डेज टू बी का यहाँ पर मतलब है इन फ्यूचर, और फेड एंड फ्लश का मतलब है कि डिसअपियर होना और फिर से रीअपियर हो जाना। Here the poet says, a tree gives us seed and by those seeds we can plant more trees in future. The time will pass with the days and years, but trees will remain same. Fade and flush again का मतलब यहाँ से समय का पास होते रहना। तो पोइट कहता है कि फ्यूचर में भी पेड़ जो हैं हम उनको लगाते रहेंगे, क्योंकि एक जो पेड़ है वो हमें बहुत सारे बीज देता है, उन बीजों से हम और भी पेड़ जो है वो लगा सकते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। He plants a forest, he plants the glory of the plain, he plants a forest heritage, the harvest of coming age, the joy that unborn eyes shall see. These things he plant who plants a tree. अब यहाँ पर हेरिटेज का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग ट्रेडिशंस, और हार्वेस्ट का मतलब है रिवॉर्ड। Here the poet says the trees give beauty to plains. We can plant more and more trees with the seeds given by the trees to us, and these more and more trees give us the beauty of forest. Trees gives beauty to the plains also, मतलब कि जो ट्रीज हैं वो धरती को भी सुंदर बनाते हैं, जो प्लेन्स हैं उनको भी सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा जो बीज हमें एक ट्री से प्राप्त होते हैं, उन ट्रीज से आगे हम और भी उन सीड से हम आगे और भी ट्रीज को जो है वो लगाएंगे, और उससे क्या होगा कि वो जो एरिया है वो फॉरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो मिलके एक फॉरेस्ट का निर्माण करते हैं। तो उन बीजों से हम और ट्रीज लगाएंगे, और वो जो बहुत सारे ट्रीज का ग्रुप है वो हमें फॉरेस्ट वाली जो फीलिंग है वो देगा। और फॉरेस्ट से क्या होता है, हमें बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स जो हैं वो मिलती हैं। वुड है, फ्लावर है, फ्रूट हैं, हर्ब हैं, शर्ब्स हैं, और ये सभी जो हैं, ये सभी चीज़ें हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो इंजॉय करेगी। ये उनके लिए एक रिवॉर्ड है, ये सभी चीज़ें उनके लिए एक रिवॉर्ड है। सो ऑल दीज थिंग्स अ पर्सन प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। तो ये सभी चीज़ें वो पर्सन प्लांट करता है जो एक प्लांट को लगाता है।
अब आगे देखेंगे थर्ड स्टैंजा। What does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and forecast thought of civic good. civic good का क्या मतलब है? तो civic good का मतलब है वो good deeds for the mankind, मनुष्य जाति के लिए किए जाने वाले अच्छे कार्य। So third and final stanza starts with the same question, and after that the poet again starts with his replies that the person who plants a tree loves his mother earth and nature very well. He is also loyal to his duties because it is a noble cause. It is a cause of civic good. तो पोइट क्या कहता है कि जिस भी पर्सन ने एक प्लांट लगाया है, एक ट्री को लगाया है, वो अपनी धरती माँ को बहुत प्यार करता है, मदर अर्थ को बहुत प्यार करता है, साथ में ही नेचर को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि प्लांट्स की क्या वैल्यू है धरती के लिए भी, हमारे लिए भी, वो हमको पता है। इसके साथ ही पोइट कहता है कि जिस पर्सन ने प्लांट लगाया है, ट्री को लगाया है, वो बिल्कुल लॉयल है अपनी ड्यूटीज़ के लिए, क्योंकि ये एक अच्छा काम है, नोबल कॉज है, और ये एक ऐसा काम है जो कि पूरी मनुष्य जाति के लिए भलाई वाला काम है। अब यहाँ पर ड्यूटी क्यों बोला है उसने? क्योंकि हम लोग धरती पर इस दुनिया में अच्छे कामों को करने के लिए आए हैं, और प्लांट लगाना, एक ट्री को लगाना एक बहुत ही बढ़िया काम है, जो कि हमारी नेचर के लिए भी और पूरी मैनकाइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सेवा करने वाला काम है। तो इसलिए पोएट ने इसको सिविक गुड बोला है। His blessings on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. यहाँ पर sea to sea का मतलब है सारी दुनिया में, whole of the world, और stirs का मतलब है arouseness of a feeling, मन में भाव उठना। Here the poet says that the trees give benefits to all neighbors around. He emphasizes that a country's growth and development depends upon its wealth of trees. Therefore, a person pays his contribution toward his country, mankind, nature and earth who plants a tree. तो पोएट यहाँ पे कहता है कि जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बेनिफिट देते हैं अपने नेबर्स को भी, चाहे वो कोई भी हो। इसके साथ ही वो जोर देता है इस बात पर कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने ट्रीज़ हैं। इसलिए एक पर्सन जिसने कि किसी ट्री को लगाया है, किसी प्लांट को लगाया है, उसने अपना योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी कंट्री के लिए, मैनकाइंड के लिए, नेचर के लिए और अर्थ के लिए। जिसने कि एक प्लांट लगाया है उसने इन सभी को अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन दिस वे द पोएट has denotes the importance of trees here in the poem.